Second year, Assalamu alaikum. In Pakistan Studies class, today we are doing tourism. This is the topic of chapter number 3, सियाहत. सियाहत से मुराद है कि फ़ारिग औकात में अपने पसंदीदा मकामात पर कुछ वक्त या दिन गुजारना और सैर व तफरीह करना. The commercial organization and operation of holidays and visits to places of interest. This is tourism. Tourism in Pakistan that was given the status of proper industry in 1970. Overall, the tourism was given the proper status of industry after the Second World War, and Pakistan gave it the same status in 1970. For this purpose, Pakistan Tourism Development Corporation gives services to the tourists. दूसरी जंग अज़ीम के बाद सियाहत को बाकायदा सनत का दर्जा दिया गया था. 1970 में पाकिस्तान ने सियाहत को सनत का दर्जा दिया और पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सियाहों की खिदमत सरंजाम दे रही है. सियाहत के बहुत से फ़ायदे हैं. As we know that tourism is the main cause of increasing economy of any country. It not only helps to increase the imports of the country but also creates good relations between the people. It helps the regional and worldly brotherhood relations. सियाहत की वजह से मुख्तलिफ़ ममालिक के माशी हालात बेहतर हो रहे हैं. इससे ना सिर्फ हुकूमत को ज़र मुबादला हासिल होता है बल्कि मुख्तलिफ़ लोगों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात भी कायम होते हैं. इसको कायम करने से जहाँ अमन कायम होता है वहीं पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों के दरमियान भाईचारे की फ़िज़ा भी कायम होती है. पाकिस्तान में सियाहों के लिए बहुत से इलाके हैं जैसे शुमाली इलाका जात, वादी गिलगित, वादी चित्राल, कागान, सवात, गलियात and Karakoram highway. First of all, we will discuss the northern parts. It contains snow-capped mountains in the north of Pakistan. There are beautiful waterfalls and trout fish is also available there. A great number of visitors from country and from abroad come to Pakistan and visit this area. There are 3 great mountain ranges: Himalayas, Karakoram and Hindu Kush. शुमाली इलाका जात में बर्फ़ पोश पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं. यहाँ पर ख़ूबसूरत आबशारें हैं, ट्राउट मछली पाई जाती है. पाकिस्तान और बैरूनी ममालिक से सियाहों की आमद होती रहती हैं. यहाँ दुनिया के 3 अज़ीम पहाड़ी सिलसिले को हिमालय, कराकोरम और हिंदू कुश मौजूद हैं. Now have a look on these mountain ranges. The first one is Karakoram mountain range, second is Himalayas and third is Hindu Kush. इन पहाड़ी इलाकों की जो बुलंद तरीन चोटियाँ हैं उनमें सबसे अहम है K2 जिसकी बुलंदी है 8,611 मीटर. The highest peak of this range is K2. Its height is 8,611 meters. This is overall the second highest peak of the world. Along with this, there are other mountain peaks as well. Nanga Parbat, 8,126 meters. Rakaposhi, 778 meters. Trichmere, it has
the altitude of 7,690 meters. These are the mountain ranges. The first picture shows K2 and the second one is of Nanga Parbat. You can see these mountain ranges are fully covered with snow. ये हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर राकापोशी की है, जिस पर हमें नज़र आ रहा है कि उस पे सारा साल बर्फ़ पड़ी रहती है। इसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर त्रिचमीर की है, यहाँ पर भी बर्फ़ मौजूद है। नेक्स्ट हमारी जो लोकेशन आती है सियाहत के हवाले से वो है वादी गिलगित। In Gilgit, there are many places for tourist attraction. For example, the stupa of Mahatma Buddha. The first picture shows the mantle of Buddha rock. And the second one, that is the 700 years old memorandum of Taj Mahal. This is 30 kilometers away from Gilgit town. नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास जो आती है वो है शंदूर पोलो ग्राउंड। दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड जो पाकिस्तान में मौजूद है वो है शंदूर के मकाम पर। रामा लेक, यहाँ से नांगा पर्वत का नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इसी तरह से हमारे पास जो शंदूर पास है उसकी एक और पिक्चर आपको नज़र आ रही है कि इसको भी बर्फ़बारी की वजह से जो रास्ता बंद हो गया था अब खोलने की तैयारी की जा रही है। नेक्स्ट इज़ वादी चित्राल। वादी चित्राल कंटेन्स मैनी ब्यूटिफुल एरियाज एज किला बीर मोगलिश्त that is present in Chitral. Kailash valleys are here. There are 3 Kailash valleys, Bambureet, Rambor and Bareer. Next is the Garam Chashma. वादी सिंध में वादी चित्राल में जो अहम तरीन मकामात आते हैं उसमें किला बैर मोगलिश्त हमारे पास मौजूद है। पहली पिक्चर में वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नज़र आ रहा है और दूसरी पिक्चर में हमें पहाड़ों के दरमियान मौजूद किला नज़र आ रहा है। ये किला 9000 फीट की बुलंदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट पिक्चर में हमें 3 वादियाँ जो कैलाश वादियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं, बम्बरीत, रंबोर एंड बरीर। यहाँ पर देखें, ये आपको सारी वादियाँ नज़र आ जाएंगी। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर आ रही है वो है गरम चश्मा की। आपको यहाँ पर पानी उबलता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें गंधक मिला हुआ है जो जल्दी बीमारियों के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर समझा जाता है। नेक्स्ट इज़ वादी कागान। वादी कागान में बेशुमार खूबसूरत झीलें, पानी के चश्मे और आबशारें हैं। The important places of Kagan are Shogran, Siripai, Naran, Lake Saiful Malook. This is the beautiful view of Shogran, Siripai in the first picture. You can see it is covered with the greenery and we can also see the clouds. The next picture shows Lake Saiful Malook and the lower one, that is the Shogran Kagan Valley. The next is related with Swat. There are beautiful places in Swat as Mangora, Saidu Sharif, White Palace, Bahrain, Meandam, Kalam, Mahudand and Malam Jabba.
These are the beautiful pictures which show the beauty of Swat. The first picture shows the Mahudant Lake that is present in Kalam Valley, Swat. And the second picture shows the Safed Mahal, White Palace, that is present in Murghzar. In the next picture, we can see the people are playing the game of skiing. Skiing competitions held in Malam Jabba every year. Galyat. There are beautiful places in Galyat as Murree, Patriota, Ayubia, Khanaspur, Nathia Gali, and Thandiani. In these pictures, we can see the fully covered with snow, a picture of Murree. In next picture, we can see the pipeline track which is present in Donga Gali, that is few kilometers away to Nathia Gali. Shahrai Karakoram. This is the 8th wonder of the world, and it starts from Havelia and ends at Pak-China border, that is Khunjarab. It took 15 years to complete with the efforts of Pak-China military experts and engineers. This is the old trade route between Pakistan and China, which was previously known as Silk Route. दुनिया का 8वां अजूबा शाहराए कराकोरम. इस शाहरा को तामीर करने में 15 साल का अरसा लगा था और ये पाकिस्तान और चीनी माहिरीन की मेहनत से तामीर किया गया है. ये शाहरा हवेलियाँ से शुरू होकर पाक चीन सरहद खुंजराब तक जाती है. इसका पुराना नाम सिल्क रूट है, शाहराए रेशम. इस नक्शे में आपको कराकोरम हाईवे नज़र आ रहा है जो हवेलियाँ से शुरू होता है और ख़त्म होता है पाक चाइना बॉर्डर पर. यहाँ पर देखें, रावलपिंडी से ऊपर आपको हसन अब्दाल नज़र आ रहा है. यहाँ से ये ग्रीन लाइन जो हमारे पास शुरू हो रही है, ये शुरू होकर सारी गुज़र रही है जिन जिन इलाकों से. वहाँ पर आपको सारा कराकोरम हाईवे का रास्ता रूट नज़र आ रहा है. मानसेरा, थाकोट, फिर उसके अलावा दासू, फिर चलास, फिर उससे आगे आप चले जाएं तो आपको राकापोशी भी उसी में नज़र आता है. यहाँ पर ये ब्राउन और ग्रीन लाइन मिक्स हो गई है. राकापोशी को देखें, नागर को देखें. फिर उसके आगे आप चले जाएं तो आपको पासू नज़र आता है, सुस्त नज़र आता है और उससे आगे आपको खुंजराब पास नज़र आ रहा है जिसकी बुलंदी है 4733 मीटर्स. यहाँ पर पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर है. यहाँ पर आपको दुनिया की तवील तरीन मेटल रोड कराकोरम हाईवे का एक और व्यू नज़र आ रहा है. ये शाहराए कराकोरम की खूबसूरती है. कुछ इलाकों में इंतहाई ख़तरनाक रोड बनाया गया है जैसा कि फ़र्स्ट और सेकंड पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है. इसी तरह से कुछ इलाकों में दरियाओं के ऊपर शाहराए कराकोरम को तामीर किया गया है. पाकिस्तान में इन इलाकों की खूबसूरती कुदरत की वजह से अता की गई है, लेकिन इनका ख्याल रखना और इनको प्रमोट करना पाकिस्तानी हुकूमत की और आवाम की ज़िम्मेदारी है. हाउ कैन वी प्रमोट द टूरिज़म? फर्स्ट ऑफ ऑल, द मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. वी शुड गिव इंफॉर्मेशन टू द टूरिस्ट फॉर ऑल दीज ब्यूटिफुल एरियाज टू कम एंड विजिट these places. Next is the role of Pakistan Embassy. The Pakistan Embassy should give information to different tourists and in different countries, and visa policies should be relaxed for the tourist.
We should also maintain roads for a peaceful traveling. Better facilities for the residents should be given to the tourist, and provision of peace and security is the most important thing, which should be given a feeling of security to the tourist. सियाहत के फ़रोग़ के लिए सबसे पहले इब्लाग़े आमा का किरदार आता है। हम टेलीविज़न और मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल करके नेट के ज़रिए तमाम लोगों को इस बात से आगाह कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से खूबसूरत इलाके सियाहत के लिए मौजूद हैं। जिन ममालिक में पाकिस्तानी सफ़ारत खाने हैं, वहाँ पर सफ़ारत खानों को चाहिए कि वो विज़िटर्स की तमाम मालूमात फ़राहम करें और वीज़ा की पाबंदियों में नरमी की जाए। इसके अलावा हुकूमत का फ़र्ज़ ये भी है कि सड़कों को बेहतरीन सूरत हाल में रखा जाए, उनकी कंडीशन बेहतरीन रखी जाए और रिहाइश के मुनासिब इंतज़ामात किए जाएं। इसके अलावा अवाम की ज़िम्मेदारी ये आती है कि जो भी सियाहती मकामात हैं उनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। हुकूमत और अवाम को चाहिए कि अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल मुहैया किए जाए ताकि सियाहों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ख़त्म हो जाए और सियाहत को फ़रोग़ मिले। शुक्रिया।